ফাইনালি আমরা পার্ট 3 তে চলে এসেছি। যে ট্রিপটার আমরা ভিডিও দেখাচ্ছিলাম, এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে গারুচিরা ইকো ভিলেজ। তা আমরা এখন গারুচিরাতে ঢুকবো, আর ওখানে নতুনভাবে সাজিয়েছি, দেখতে কি রকম লাগে সেটা আমরা গিয়ে দেখবো। ডালমোড় পর্যন্ত কিভাবে আসবেন পার্ট 1 ফলো করুন, ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে, দেখে নেবেন একবার। বীরপাড়া ভায়া ডালমোড় হয়ে গারুচিরার ডিস্টেন্স অ্যাপ্রক্স 15 কিলোমিটার। ডালমোড় থেকে মাকড়াপাড়ার রাস্তায় দেখা যাবে একটি সাইনবোর্ড, লেখা থাকবে গারুচিরা ইকো ভিলেজ। ওই রাস্তা ধরেই আপনাকে যেতে হবে। চারিদিকে চা বাগান, চা বাগানের মাঝখান দিয়ে আমরা চলছি। সামনে একটা নদী পড়বে, নদীর উপর দিয়ে কোনো ব্রিজ নেই। বর্ষার সময় খুবই খরস্রোতা, তার উপর দিয়েই যাব। চা বাগানের পরে আবার ফরেস্ট শুরু হয়ে গেছে। এই ফরেস্টটার নাম হচ্ছে বান্দাপানি ফরেস্ট। এই যে নদী, এই নদী দিয়ে যেতে হয় বর্ষার সময়, খুবই মুশকিল এদিক দিয়ে যাওয়া। सामने बांदापानी विलेज। भाई नदी का नाम क्या है? नदी का नाम क्या है? ये गारुचिरा नदी है। सुक्ति नदी गारुचिरा ना, वो तो पता है, लेकिन नदी का नाम है सुक्ति नदी ना, भूटान से आया है ना। अच्छा अच्छा, थैंक यू। আমরা এই যে গারুচিরা ভিলেজে যাচ্ছি, আর এই নদীটা হচ্ছে সুক্তি নদী, লোকালরা সুক্তি নদী বলেই বলে। তা আমরা এই নদীর উপর দিয়েই যাচ্ছি। জল নেই, জল হলে কি মারাত্মক হয় সেটা ভাবা মুশকিল, চিন্তার বাইরে। আমরা নদী ক্রস করার পরে ডান দিকে ঢুকে যাব গারুচিরা ইকো ভিলেজ ট্যুরিজম। আমরা যাচ্ছি মাকড়াপাড়া থেকে গারুচিরা ইকো ভিলেজের দিকে, ডিস্টেন্স 6 কিলোমিটার অ্যাপ্রক্স। ছোট্ট একটি গ্রাম, দারুণ দেখতে। বান্দাপানি ফরেস্ট, তার মাঝখান দিয়ে যাচ্ছি, আর এদিকে চা বাগান, এদিকে ফরেস্ট, সামনে পাহাড়, আর ওই পাশটা ভুটান। মাঝখান দিয়ে যে নদীটা আছে, নদীর কাছাকাছি আমরা যাচ্ছি না আজকে, কারণ ওই সাইডে যাওয়াটা খুবই রিস্কি, হাতি চলে আসে দিনের বেলাও। এই যে ঢুকে গেছি বাঁ দিকে আমাদের গারুচিরা ইকো ভিলেজ, নতুনভাবে সাজিয়েছে। ফাইনালি আমরা পৌঁছে গেছি আমাদের ডেস্টিনেশনে। গারুচিরা হলো ইন্ডিয়ার লাস্ট বর্ডার ভিলেজ, কারণ পাশেই আছে বন্ধুদেশ রয়্যাল ভুটান। গারুচিরা ইকো ভিলেজে কি কি সুবিধা আছে একবার দেখে নেই, চলুন। গারুচিরাতে এসে সময় কিভাবে কেটে যায় বুঝতেই পারবেন না। ফ্যামিলি নিয়ে নিরিবিলিতে প্রকৃতির মাঝে আনন্দ উপভোগ করার একটি পারফেক্ট জায়গা। বৃষ্টি চলে আসছে, ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ছে, আর দারুণ একটি জায়গা। গেট বানিয়ে দিয়েছে, আমরা ওই দিক দিয়ে ঢুকেছিলাম, মনে আছে? ফরেস্টের ভেতর দিয়ে টাওয়ারটাকেও বানিয়েছে। পৌঁছে গেছি গারুচিরা ইকো ভিলেজে। এখানে স্বনির্ভর গোষ্ঠী, তারা এটাকে মেনটেনেন্স করছে। আগে তৈরি হয়েছিল, কিন্তু মেনটেনেন্সের অভাবে একদম জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল, সেটাকে আবার এরা তুলে ধরেছে পর্যটকের সামনে। এবং ট্যুরিজমের একটা বিশাল দিক যে এখানে আবার গারুচিরা আগের মতন ফিরে এসেছে। দারুণ সুন্দর দেখতে চারিদিকে। চলুন কথা বলে নিব এখানকার যারা মেনটেনেন্স করছে তাদের সাথে, तारा की बोले। सर आपका जो ये गारुचिरा इको विलेज है तो इसमें कौन अभी ये मेंटेनेंस कर रहा है? इतना सुंदर मेंटेनेंस है। ये हम लोग को ग्राम विकास संघ SSG ग्रुप मेंटेन कर रहा है। जी 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 जी, हम लोग मिल के चला रहा है इसका।
अच्छा अच्छा, तो पहले तो एकदम खत्म हो गया था खत्म ये, हो गया था। तो अभी ये- टूरिस्ट आ रहा है क्या? हाँ, बीच में अभी वैसे तो ज़्यादा फ्लो तो नहीं है, जी जी, बीच में थोड़ा कम आ रहा है आ रहा है। नहीं, अभी मेंटेनेंस बहुत बढ़िया से हो रहा है। तो ये एक चीज है, तो यहाँ पर जो आप बता सकता है जो रेंट कितना है ये जो रिसोर्ट का? हम लोग को- एक्चुअली रिसोर्ट या होम स्टे? ये रिसोर्ट, रिसोर्ट है। हाँ, ये हमारा कॉटेज का एक कॉटेज का मतलब पर नाइट 1500 करके है। अच्छा अच्छा, और खाना का आपका पर हेड पैकेज 600 रुपये, जी जी, खाना अलग से? खाना अलग से। अच्छा, ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक? ना डिनर नहीं होगा, लंच नहीं होगा, डिनर होगा। डिनर हो जाएगा। आपका इसमें इवनिंग स्नैक्स होगा 600 का पैकेज में, रात का डिनर होगा, सुबह ब्रेकफास्ट, टी। इसमें एक पैकेज हो गया, अच्छा। 600 रुपये। 600 रुपया? लोकल मुर्गा देंगे। अच्छा, लोकल। हाँ, अच्छा अच्छा, लोकल। और बॉयलर रात में जो डिनर में बॉयलर मिलेगा तो उसको 500 रुपये। अच्छा अच्छा, ये कॉटेज का 1500 रुपये 1500 रुपया पर नाइट, पर नाइट, पर हेड? ना नहीं, पर नाइट, पर नाइट तो कॉटेज का कॉटेज का एक। कितना सो सकता है? ये हम लोग को 2 बेड है, 2 बेड है। 2 बेड में एक फैमिली, एक फैमिली सो सकता सो है, सकता मैंने बच्चा को लेके हाँ 3 आदमी रह सकता हाँ, है। आराम। अच्छा तीन अच्छा, से और चार आदमी यहाँ का जो सेफ्टी सिक्योरिटी है वो रात में रहेगा कोई फैमिली? हाँ, हम लोग का अपना एक कमेटी अच्छा, रहता है, रहता है। मतलब टूरिस्ट रहता है तो आप लोग हाँ, रहता है हाँ, ऐसे 24 आवर्स? हाँ। मतलब कोई चिंता नहीं है यहाँ पर, जो बाहर का जो आदमी आएगा फैमिली लेके वो कोई चिंता नहीं है कोई इसमें, टेंशन नहीं। फुल सिक्योरिटी है? अच्छा, कमेटी देता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ना बात तो सही है, ये होना चाहिए पहले, फास्ट सिक्योरिटी देखता है ना हर जगह में। तो आपका शुभ नाम? हमारा रविलाल कागज है, अच्छा अच्छा गाड़ीचीरा निवासी। अच्छा, ये गारूचीरा के यहाँ का ही रहने वाला है? नहीं, ऑयल मेंटेनेंस है तो देखा है, तो ठीक है, ये एक मैसेज है। ओके सर। हाँ, तो ये इसके थ्रू फिर आदमी का पास भी जाएगा, आएगा आदमी लोग। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी है? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी है। अब इलेक्ट्रिसिटी बाय द वे इसको कोई कॉन्ट्रोल से नहीं आने से हम लोग को देना चाहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मिनिमम 10 बजे तक? हाँ, 10 दे देंगे। बैकअप दे देते हैं। और हमारा बैकअप देने का और इसका ये भी है, मतलब अच्छा, इन्वर्टर भी है। इन्वर्टर भी है। अच्छा, यहाँ पर तो नॉन एसी है सब, एसी नहीं है? AC नहीं। और जरूरी नहीं है यहाँ पर, वेदर भी ऐसा ही है, मौसम भी बहुत बढ़िया, पहाड़ भी है, आगे आगे तो भूटान है। हाँ, ये सब हमारा लास्ट ओजा वाला है, ये भारत का हमारा लास्ट बॉर्डर है। लास्ट बॉर्डर, मतलब ये है हमारा जो इंडिया का, भारत का है लास्ट बॉर्डर, लास्ट बॉर्डर विलेज है, विलेज है हमारा, मतलब एकदम लास्ट में लास्ट। वहाँ से हम लोग को भूटान भूटान शुरू हो जाता है, फॉरेन कंट्री। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। আপনারা যারা ওয়াইল্ড লাইফ পছন্দ করেন তাদের জন্য বলছি, গারুচিরা ফরেস্ট হলো নেপাল থেকে আসা বন্য হাতিদের প্রধান করিডোর। ভাগ্যে থাকলে দেখতে পেয়েও যেতে পারেন এদেরকে। তাহলে বন্ধুরা, এই ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাবেন। দেখা হচ্ছে অন্য একটি ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।